ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚੌਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਸਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 100 ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 52 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੰਤ ਜਨੋ ਸੁਨ ਭਾਈ ਹੋ, ਛੂਟਣ ਸਾਚੈ ਨਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਹੋ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ, ਸੰਤ ਜਨੋ, ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, 2 ਵਾਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ, ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਸੁਣ ਭਾਈ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਛੂਟਣ ਸਾਚੈ ਨਾਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆਂ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਲਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੂਟਣ ਕਿ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਭਾਵ ਉਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਸਰੇਵਣੇ, ਤੀਰਥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੂਜਣੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੈ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਸਰੇਵਣੇ। ਸਰੇਵਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੇਵਣੇ, ਪੂਜਨੇ। ਆਗੈ ਦਰਗਾਹ ਮੰਨੀਐ, ਮਿਲੈ ਨਿਥਾਵੈ ਥਾਉ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਰੇ
साची सतगुर सेव। कि हे भाई गुरु की सेवा है जिहड़ी वो करनी कर, क्योंकि गुरु की सेवा फल वो जरूर देंदी ही देंदी है। गुरु की सेवा करने नाल फल प्राप्त होंदा ही होंदा है, मिलेगा मिलेगा ही फल। क्योंकि भावें कैसे भी कर्म करिए, मंदा कर्म करांगे तो फल तो उहदा मंदा ही प्राप्त होएगा, पर जे गुरु की सेवा करांगे तो उहदा 100% है जिहड़ा वो फल चंगा ही गुरु जिहड़ा वो बख्शेगा, मिलेगा ही मिलेगा। सतगुर तुठै पाईऐ पूरन अलख अपेव रहाओ। सतगुरु तुठ कि जे, क्योंकि जे सतगुरु तुठ पे भाव प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न हो पे तो वो फिर परमात्मा मिल पैंदा है। कि जे गुरु प्रसन्न हो गया फिर परमात्मा मिलता है। देखो सतगुरु जी स्पष्ट कर रहे कि कोई होर रस्ता नहीं है, इक्को ही रस्ता है गुरु। जे रब नूं मिलना है तो गुरु नूं खुश करना होएगा। गुरु खुश हो गया उदों ही मालक की प्राप्ति है। इस करके पातशाह जी आखदे हन फिर वो मालक मिल पैंदा है जो सब विच व्यापक है, जो अदृष्ट है अते जिसदा भेत नहीं पाया जा सकता। पातशाह जी ने इत्थे शब्द वरते हैं पूरन अलख अभेद। इनू अलख नहीं पढ़ांगे क्योंकि अलख दे अर्थ भाव कुछ होर ने। अलख शब्द जोग मत के अंदर ज़्यादा वरतिया जाता है, पर इनू अलख पढ़ांगे जिसनू जानिया नहीं जा सकता। क्योंकि किसी चीज़ नू लख लेना भाव जान लेना, यह अलख कि जिन्हों जानिया नहीं जा सकता, जिहदा भेत ही नहीं पाया जा सकता। इस करके जदों भी उस मालक दे लई ये शब्द अलख अलख आएगा, इसी तरह उन्होंने असी अलख उचारण करांगे। अभेव जिहदा भेत नहीं पाया जा सकता। सतगुर विटों वारिया जिन दिता सच नाओ। पातशाह जी आखन लगे हे भाई मैं उस गुरु तो सदके जाता हाँ जिसने मैनू सदा कायम रहने वाला उस मालक दा नाम जिहड़ा है वो बख्श दिता है। मालक हरि दा नाम जिहड़ा है वो बख्श दिता है। आन दिन सच सलाहना सच्चे के गुण गाऊं। जिस गुरु की कृपा नाल मैं हर वेले सदा थिर परमात्मा नूं सलाउंदा रहिंदा हां अते सदा थिर प्रभु दे गुण गाउंदा रहिंदा हां। ये नासकी उच्चारण होएगा क्योंकि पातशाह जी आखे कि मैं करदा रहिंदा हां, क्योंकि गुरु की कृपा हुई इस करके मैं उस मालक के गुण गाउंदा रहिंदा हां अते उस मालक नूं सलाउंदा रहिंदा है। अंदन सच सलाहना सच्चे के गुण गाऊं, मैं गाउंदा रहिंदा हां। गाओ नहीं, जे असीं गाओ उच्चारण करांगे फिर थर्ड परसन वास्ते हो जाएगा कि किसी नूं कहा जा रहा है कि तुसीं गाओ, पर जे गाओ उच्चारण करांगे फिर मैं गाउंदा हां, वो मेरे वास्ते बन जाएगा। इत्थे पातशाह जी अपने दी भाव साडे सब जीवां ने जदों आपां सारिआं ने ये बाणी उच्चारण करनी है, विचार करनी है तो फिर असीं गुण गाउंदे हां, भाव मैं गुण गाउंदा हां। सच खाना सच पहनना सच्चे सच्चा नाओ। पातशाह जी आखन लगे हे भाई गुरु की मेहर नाल हुण सदा थिर हर नाम मेरी आत्मक खुराक बन गया कि हुण प्यास है ना जिहड़ी भुख है उस मालक के नाम की लगी रहिंदी है। कहण तो भाव है कि विकारां की भुख नहीं रहिंदी, हर वेले वो मालक ही हर पासे नज़र आउंदा है, इहो जी खुराक बन जाती है। हर पासे ओदा हुक्म ओदी रज़ा ही नज़र आउंदी है। कोई माड़ा कर्म माड़ा विचार है जिहड़ा वो नेड़े आउंदा ही नहीं है।
ਇਹੋ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੱਚ ਖਾਣਾ, ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਪਹਿਨਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਦਾ ਥਿਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਦਾ ਥਿਰ ਨਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਪਦਾ ਹਾਂ, ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਪਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨ ਵਿਸਰੈ, ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਆਪ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ हे ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਫਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਗਰਾਹੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਸ ਤੇ ਗਰਾਸ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਨਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਅਤੇ ਗਰਾਸ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗਰਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਵੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਹ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 24 ਘੰਟੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਦਾ ਥਿਰ ਸਾਸ ਗਰਾਸ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾ, ਭੁੱਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਆਪ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਗੁਰ ਜੇਵਟ ਅਵਰ ਨ ਦਿਸਈ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਿਸ ਜਾਪ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਗੁਰ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨ ਦਿਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਿਸ ਜਾਪ, ਕਿ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ, ਸਚ ਨਾਮ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਗੁਣਤਾਸ ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ हे ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕ ਹੈ, ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
सब में रह समाए, जिहड़ा मालक सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ समाया होया ਉਹ ਅਤੇ गुरु दोवें ही एक समान ਹਨ, एक ही रूप ਹਨ। जिनको पूर्व लिखिया सेई नाम त्याए, पातशाह जी आखन लगे जिन्हां मनुखां दा पहले कीते कर्मां दी नेक कमाई ते संस्कारां दा लेखा उगड़दा है। भाव पहले जिहड़े कर्म कीते हन उन्हां दा फिर जदों लेख उगड़दा है तां ओह मनुख फिर गुरु दी शरण पै के परमात्मा दा नाम फिर सिमरदा है ते आउंदा है कि जिन को पूर्व लिखिया सही नाम ते आए। जिहड़े उहदे नाम नाल जुड़े ने ਉਹੀ ਫਿਰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਏ। इत्थे हुण शब्द सतगुरु पातशाह जी ने वरतिया है मरै ना आवे जाए। हुण देखो इत्थे एक विचार आपां करिए कि विश्रामां दा किन्ना जिहड़ा ओह अहम स्थान है गुरबाणी दे विच। आपां आख दिंदे कि कोई गल नहीं पढ़दे, पर विश्राम तो बिना गुरबाणी दे अर्थ बदल जांदे। हुण इत्थे देखो कि नानक गुर शरनागति मरै, जे विश्राम इत्थे ला दईए फिर अर्थ की हो जाणगे। आपां विश्राम है जिहड़ा जेकर इत्थे ला दईए कि नानक गुर शरनागति मरै, कि जिहड़ा गुरु दी शरण आउंदा है वह मर जांदा है, ना आवे जाए, ना आउंदा है ना जांदा है। चलो एक गल वखरी है, पर पहले नाल तां फर्क पै गया। पर असल दे विच तां जिहड़ा गुरु दी शरण विच आउंदा ओह प्रगट हो जांदा है, उते उहदा आत्मिक जीवन उत्पन्न हो जांदा है। पर जे इत्थे आपां इह कह दईए नानक गुर शरनागति मरै ना आवे जाए तां इहदे अर्थ वेखो बदल गए। पर इत्थे ही नानक गुर शरनागति मरै ना आवे जाए, ना वह मरदा है ना वह जमदा है, ना आउंदा है ना जांदा है। देखो किन्ना, ते जे इत्थे नानक गुर शरनागति मरै ना, इत्थे विश्राम ला दईए ते फिर की होएगा कि जिहड़ा गुरु दी शरण आउंदा है वह मरदा नहीं है, ते मगरले दो अखर वखरे कर दईए फिर आवे जाए, वह आउंदा जांदा रहिंदा है। बदल गए ना अर्थ। फिर कहने तो भाव है कि विश्राम जरूरी है, ये भी ध्यान रखना है कि इत्थों तक इहदा आ हिस्सा है, अगले हिस्से दे उस अगले शब्द नाल। इस तरह ये जिहड़ा नन्ना है इसनूं गुरबाणी दे विच दोहरी दीपक आख्या जाता है कि जिवें दोहरी दीपक का भाव हुंदा है कि जिवें ये दरवाजा है ते दो कमरियां दे विच चानन करना होए ते इहनूं दहलीज दे विच रख दिता जाए कि अंदर भी चानन रहेगा और बाहर भी रहेगा। दो कमरे चानन हो गया ना, कहने दा भाव कि दीवा एक है ते दोवें कमरे जुड़े हुए प्रकाश दे नाल। इवें ही ये शब्द है, इहनूं वखरा नहीं कर सकते, इहनूं इकट्ठा ही पढ़ांगे। ना मरै ना आवे जाए, कि ये दोवें पासे जुड़ता है, मरै नाल भी ना मरै अते अगे ना आवे जाए इहदे नाल भी जुड़ता है। इस करके क्योंकि दोनों पासे ये अर्थ करता है शब्द दे नाल जुड़ के। गुरबाणी दे विच बहुत थावां ते ऐसे शब्द हैं जिहड़े दोहरी दीपक का रूप, क्योंकि कई बार आ जाता ना दोहरी दीपक है जां किद्दां है, ये इस शब्द का रूप है। भाव इनू दोहरी दीपक आख्या जाता जिहड़ा दोवें पासे शब्दां दे नाल होवे इकल्ला, पर दोवें पासे जोड़ के अर्थ करे, उसनूं दोहरी दीपक आख्या जाता है। पातशाह कहंदे नानक गुर शरनागति मरै ना आवे जाए, कि हे नानक जिहड़ा मनुख गुरु दी शरण पैंदा है वो मनुख आत्मक मौते नहीं मरदा, वो फिर जन्म मरण दे गेड़ विच नहीं पैंदा है। बड़ा सौखा सतगुरु जी ने समझा दिता है। हुण इत्थों तक विचार है जिहड़ी 100 शब्द पूरे हो चुके हैं। पहला चौका है जिहड़ा दो डंडियां तो बाद 4 अंक लिखिया होया है, इहदा की अर्थ है जी?
इस शब्द दे 4 पदे हो गए हैं। फिर 2 डंडियां तो बाद 30 लिखिया होया 30। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 30 ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ 2 ਡੰਡੀਆਂ ਅੱਗੇ 100 ਲਿਖਿਆ। ਇਹ 100 ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 100 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 33 ਸਨ, ठीक है जी। उस तो बाद गुरु अमरदास पातशाह जी दे 31 सन अते गुरु रामदास पातशाह जी दे 6 शब्द सन। गिनती हो गई कितनी हो गई? 70 हो गई। ते 30 शब्द गुरु अर्जन साहब जी दे हो गए, 100 हो गए पूरे। गिनती ठीक लिखी है। यह है गुरु पातशाह जी का देखो किड्डा लॉक सिस्टम कि सारे की गिनती करके टोटल ला के दसदा कि इन्ने है, कोई कट ना कट सकता ना पा सकता। बड़े तरीके दे नाल सतगुरु पातशाह जी जिहड़ा है ये दर्ज करना कीता। हुण अगे अष्टपदियां दी आरंभता जिहड़ी वो हो रही है। एक ओंकार सत गुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर पहला अष्टपदियां अष्ट इत्थे अष्टपदिया लिखिया है, अष्टपदिया पर असल दे विच अष्टपदियां 8 पदियां वालियां। ये हुण बहुतियां ने, इस करके सतगुरु जी ने अष्टपदियां लिखिया है। जिथे हुण एक ही अष्टपदी होएगी उत्थे बहुती वार सतगुरु जी ने अष्टपदी ही लिखिया हुंदा है। अष्टपदी कि एक ही है, इत्थे हुण ज़्यादा आउणगियां अगे, इस करके पातशाह जी ने अष्टपदियां कि 8 पदियां वालियां। अष्ट तो भाव 8, पदियां तो भाव पदियां वालियां। 8 पदियां वाली जिहड़ी रचना है वो आ रही है। आख आख मन वावना ज्यों ज्यों जापै वाए। आख आख के, आख तो भाव आख आख के, वावना तो भाव खपाउना, खुआर करना। पातशाह जी आखन लगे आख आख कि ज्यों ज्यों किसी जीव नूं प्रभु दे गुण बोलण दी समझ पैंदी है, जिवें जिवें वो मालक दे गुणां दी जिहड़ी है वो समझ प्राप्त करता है, त्यों त्यों ये भी समझ आउंदी जांदी है कि उहदे गुण है, गुण बयान करके मन नूं खपाउणा ही है, मन नूं खपाना ही है। जिसनो वाए सुनाई है सो केवड कित थाए। पातशाह जी आखदे हन कि फिर जिसनों ये समझ पैंदी है, जिसनों वाए सुनाई है, भाव वाए तो भाव बोलण दी समझ पैंदी है, वाए तो भाव बोल के कि सो केवट कित थाए, कि जिस प्रभु नूं बोल के सुनाईदा है, कि जिस प्रभु नूं बोल के सुनाईदा है, भाव जिस प्रभु दे गुणां नूं गुणां बारे बोल के होरनां नूं दसीदा है, उस बाबत ये तां पता ही नहीं लगता कि वो किन्ना को वड्डा है, कि सो केवड कित थाए, किन्ना को वड्डा है। आखन वाले जितड़े सब आख रहे लिवलाए। कि जिन्हों फिर समझ पैंदी है वो दसण दा यतन करता है कि किन्ना को वड्डा है, कित थाए किहड़ी थां ते वो निवास रखता है, फिर वो बयान करन दा यतन करता है। पर असल दे विच फिर बयान ये हुंदा नहीं। पातशाह जी आखन लगे फिर आखन वाले जेतड़े, कि जिन्ने भी भाव सारे बयान करते ने वो थक जाते ने, उस दे
गुणां दी विचार करदिआं हो आखण वाले जितड़े सब आख रहे लिवलाए कि ਉਹ थक जाते ने जिन्ने भी उस मालिक के गुणां दा बयान करन दा यतन करते हैं व्याख्या करन दा यतन करते हैं सब आख रहे लिवलाए पर वो गुणां विच सुरत जोड़ते जिहड़े वो रह जाते हैं कि सुरत जोड़ते ने पर गुणां दी विचार करदिआं है जिहड़ा उन्हां तों फिर भी बयान है वो नहीं किया जा सकता है। बाबा अल्लाह अगम अपार हुण इत्थे शब्द ऐड़ा लल्ला हाहे नूं औंकड़ है। हुण हाहे नूं औंकड़ एक काहदा प्रतीक है? हाँ जी एक वचन पुलिंग है फिर ये औंकड़ उचारण होएगा इत्थे। पार ब्रह्म नूं भी पिछे औंकड़ आया सी आपां उचारण कीता सी गुरु नूं भी रारे नूं भी जिहड़ा है गुर दे रारे नूं एक औंकड़ आया सी। कहण तो भाव एक वचन है कि इहदा भाव है अल्लाह एक ही है कि सतगुरु जी ने हुण इत्थे कोई भेदभाव तां रखिया नहीं कि जे कोई इस्लाम दे ग्रंथ है उहदे विच राम ने लिखिया मिलेगा ते जे कोई हिंदू धर्म दे शास्त्र आदि धर्म ग्रंथ ने उहदां दे विच अल्लाह नहीं लिखिया मिलेगा। धन गुरु नानक साहब जी ने ऐसा नहीं कीता। वो कहंदे सारे नाम उहदे ही ने अल्लाह भी उहदा नाम है वाहिगुरू भी उहदा ही नाम है पार ब्रह्म भी उही है रमिया होया राम भी सारिਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ है भगवान भी उही है सारा कुछ वो आप ही है नावां दे नाल नहीं ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਅਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗੰਮ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਅਗੰਮ ਕਿ ਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। इस करके जे एक हुंदा है गम एक है गम कि गम का अर्थ सोग। इसे तरह जे गम है तो भाव गमता जिथों तक साडी पहुंच है। पातशाह जी समझाउंदा कि बाबा कि हे भाई अल्लाह अगम अपार परमात्मा दे गुणां तक पहुंच नहीं हो सकती। उस दे गुणां दा जिहड़ा है वो पारावार वो पाया नहीं जा सकता पहुंचा नहीं जा सकता। पाकी नाई पाक थाए सच्चा परवतगार रहाओ। इत्थे हुण शब्द पप्पा रारा वावा दद्दे नूं सियारी है ठीक है इसे तरह ही है दद्दे नूं सियारी है। इस करके जदों वावे नूं सियारी आएगी उसी परविदगार पढ़ांगे पर इत्थे हुण परवतगार है। पातशाह जी आखदे परवतगार का अर्थ हुंदा है मालिक परमेश्वर। उसे तरह ही जिद्दां असीं आपां बाकी उस मालिक दे नावां दा भाव पालन वाला परवतगार सब नूं पालन वाला अल्लाह तो भाव भी वो मालिक अगम तो भाव जिथों तक पहुँच नहीं हो सकती अपार जिहदा पार नहीं पाया जा सकता। इस पाकी नाई पाक थाई पातशाह जी आखण लगे कि पाकी तो भाव पवित्र नाई तो भाव उहदी वडियाई। ये नाई शब्द जिहड़ा है ये अरबी दा है। नाई शब्द है जिहड़ा वो अरबी दा लफ्ज है इहदा भाव है इहदा अर्थ है वडियाई क्योंकि इत्थे शब्द ने सतगुरु पातशाह जी ने जिवें पाकी नाई पाक थाई ये सारे शब्द अरब नाल संबंधित ने अरबी दे नाल संबंधित ने। इसे करके पाकी नाई पाक थाई पाक दा अर्थ भी पवित्र निर्मल थाई। सतगुरु जी आख रहे ने कि जिवें उस दी वडियाई भी पवित्र है वो पवित्र स्थान ते ही शोभ रहा है कि उहदी वडियाई भी पवित्र है निर्मल है सच्ची है ते वो जिथे रहिंदा है वो थां भी सच्चा ही है कि जिहड़ा हुण गुरु दे शब्द राहीं जुड़ के उसके नाम की संभाल करेगा ते मालिक दा स्थान भी उत्थे हो जाएगा क्योंकि वो पवित्र थां ते है।
तेरा हुक्म न जापी केतड़ा, लिख ना जाने कोए। पातशाह जी है तेरा हुक्म ना जापी केतड़ा, कि तेरा हुक्म किन्ना कु वड्डा है, किन्ना कु जिहड़ा है वो बेअंत है। लिख ना जाने कोई, ना ते कोई उन्होंने लिख सकता है, ना उन्होंने कोई जान सकता है, भी उहदे बारे कोई बयान नहीं कर सकता कि तेरा हुक्म अटल है, तेरा हुक्म किन्ना कु वड्डा है, किन्ना कु बेअंत है। इहदे बारे ना तो कोई बयान कर सकता है, ना कोई लिख सकता है, ना कोई जान सकता है। जे 100 शायर मेलिए तिल ना पुजावें रोए। शायर शब्द है, असल विच शायर है कि कवि जिहड़े कवितावां लिखते हैं। पातशाह जी आखण लगे कि जे 100 कवि, जे 100 भाव 100 कवि भी इकट्ठे कर लए जाण तां भी वो बयान करन दा व्यर्थ यतन करके तेरे गुणां दे एक तिल मात्र जिहड़ा है वो पहुँच नहीं सकते, पहुँच नहीं सकते। जिन्ना मर्जी वो जड़ा है वो यतन कर लैन पातशाह जी, जे 100 सस्या सस्सा ऊड़े औंकड़ है, भाव गिनती का सैकड़ा है। ये बहुवचन के शब्द विच है कि जितने मर्जी कवि इकट्ठे हो जाए, जिवें असीं शब्द वरते हैं तेरे अरगे 20 वेखे है या 20-25 जने सीगे, कोई गिनती मुकरर नहीं होंदी। इस तरह पातशाह शब्द जरूर 100 वरत रहे हैं पर गिनती मुकरर नहीं है, भाव बहुत जिन्ने मर्जी कवि इकट्ठे हो जाए। जे 100 लिखे आप 100 भी कह सकते हाँ, पर असल दे विच बेअंतता की गल है कि जिन्ने मर्जी कवि इकट्ठे हो जान, इकट्ठे कर ले जान, पर एक तिल मात्र भी तेरे है जिहड़े गुणां दा वो अंत नहीं पा सकते हैं। कीमत किनै ना पाईया सब सुन सुन आखें सोए। पातशाह जी आखन लगे किसी भी जीव तो तेरा मुल नहीं पाया जा सकता है कि कोई तेरी कीमत पा ले, कि कोई इन्नी क जिहड़ी है तैनूं कोई माया दे देवे जां धन पदार्थ दे दे ते हाँ जी रब जिहड़ा उधर आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कीमत नहीं पाई जा सकती रब की, कि जे कीमत नाल ही मिलदा हुंदा ते फिर तां अमीरां कोल ही होना सी, फिर जिहड़े आर्थिक तौर ते नीवें ने उन्हां कोल ते रब ने होना ही नहीं सी। पातशाह जी उसकी कोई कीमत नहीं है, कीमत नहीं पा सकता। अते सब सुन सुन आखें सोए, ते सारे जीव उस मालक दे बाबत दूजियां तो सुन सुन के आख दिंदे हन कि जिवें कोई किसी तो सुनदा है उवें आख दिंदा कि रब इस तरह दा है, जिवें कोई किसी तो सुनदा है, जिवें कोई कहंदा है वो अगे दसदा है कि रब मालक इस तरह दा है। पीर पैकांपर पीर पैकामर सालक साधक शोधे और शहीद। पैकामर पीर पैकामर सालक साधक शोधे और शहीद, ये सारे जिहड़े ने इस्लाम दे नाल अरब दे नाल जिहड़े हन वो संबंधित शब्द हैं। पातशाह जी ने एक गिनती जिहड़ी वो कीती है। पीर तो भाव गुरु, पैकामर तो भाव पैगंबर, सालक तो भाव रस्ता विखाउण वाले, साधक तो भाव सिदक वाले, शोधे भाव मस्त फकीर शोधे, क्योंकि ये अरफी का लफ्ज़ है, इनू आपां बिंदी दे नाल उच्चारण करांगे। सच्चे च बिंदी वाला जिहड़ा सस्सा है वो इत्थे वरतिया जाएगा। शोधे और शहीद भाव शोधे तो भाव जिहड़े मस्त होए फकीर हुंदे हन उन्हां दी गल। शहीद और शहीद सतगुरु पातशाह जी आख रहे हन कि हे भाई कि प्रभु जिहड़ा है वो दुनिया के अनेकां पीर पैगंबर होर जीवन राह दसन वाले अनेकां जिहड़े
उस बनाए हुए मनुख ने या जीव ने। उस तो बाद होर सतगुरु पातशाह जी अगर रहमत करते हैं, शेख मशायक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद। इहदा उच्चारण शेख नहीं होगा, शेख मशायक काजी, जज्जे दे पैर दे विच बिंदी लगेगी, काजी काजी नहीं काजी, मुल्ला पातशाह मशायक तो भाव अनेकां शेख। अते पातशाह जी आख रहे हैं दर दरवेश रसीद, कि जिहड़े दर दरवेश ते तेरी दर दे दरवेश ने रसीद ने, बरकत तिनको अगली पढ़ते रहन दरूद। रसीद का भाव है पहुंचे हुए, अगली तो भाव बहुत, बरकत तिनको अगली पढ़ते रहन दरूद। दरूद तो भाव कि नमाज तो पिछों जिहड़ी दुआ होंदी उहनूं दरूद आख्या जाता है। जिहड़े इस्लाम दे विच पंज नमाजी नमाज आदि अदा करते हैं, उस तो बाद जिहड़ी प्रार्थना करते हैं दुआ करते हैं ना, उहनूं दरूद आख्या जाता है। हुण इस दे विच सतगुरु पातशाह जी ने सारे नाम लए ने। हुण नाम तो बाद पातशाह जी फिर रहमत कर रहे हैं कि दुनिया ते अनेकां बहुवचन दे विच शब्द ने सारे पीर पैगंबर होर नानू जीवन दा राह दसन वाले अनेकां शेख काजी मुल्ला ते तेरे दरवाजे तक पहुंचे हुए दरवेश आए। किसे ने हे प्रभु तेरे गुणां दा अंत नहीं लभा, कि कोई अंत नहीं पा सकिया इन्हां दे विचों। हाँ सिर्फ उन्हां दी बहुत बरकत मिली है, उन्हां नूं बहुत जिहड़ी वडियाई मिली है, बरकत मिली है, उन्हां दे ही भाग जागे हन जो तेरे दर ते दुआ अरज़ोई करते रहंदे ने। दरूद तो भाव कि उन्हां ने वो तेरे नाल जुड़े जरूर ने पर तेरा अंत नहीं पा सके। पर एक गल है कि उन्हां नूं वो दुआ करन दे नाल दरूद दे नाल वो तेरे दर ते पहुँच गए हैं, तेरे नाल जिहड़े हैं वो मिल गए हैं, क्योंकि वो उन्हां दे भाग जाग पए हैं। पुछ ना साजे पुछ ना ढाहे, पुछ ना देवै ले, हुण पातशाह जी देखो कितना सोहना समझा रहे हैं कि हुण मालिक किसी की सलाह नहीं लैंदा, कि मता किते कोई किसी पासे उन्हें अपना हुक्म वरताउणा ते उत्थे सलाह पुछेगा जां पहला आगाह करेगा कि इंज कर लो। इस नहीं पुछना प्रभु इस जगत ये जगत ना किसी तो सलाह लैके बनाउंदा है ते ना ही पुछ के ढाउंदा है, कि कदों उन्हें ये सृष्टि पैदा करनी है, कदों उन्हें पैदा करना है, कदों जीवां नूं उत्पन्न करना है, वो किसी तो पुछदा नहीं है। अते कदों उन्हें उन्होंने लैके जाना जीवां नूं जां कुदरत दे विच कोई नाश करना है कुदरत दा, वो किसी नूं पुछदा थोड़ा है, ना दसदा है ना पुछदा है। अते पुछना देवै ले, अते ना ही किसी दी सलाह नाल शरीर विच जिंद पाउंदा है अते ना कटदा है, कि उहदी मर्जी अपनी है। पुछदा नहीं है कि किसी शरीर विच किहदे विच उहने जिंद पाउणी है ते किहदे विच नहीं पाउणी। अपनी कुदरत आपे जाने आपे करन करे, परमात्मा अपनी कुदरत आप ही जानता है, आप ही ये जगत रचना रचदा है, कि आपे ही करन करे, आप ही इस संसार नूं बनाउंदा है रचदा है। सबना वेखै नदर कर जै पावै तैं दे, वेख्या दा अर्थ की है जी? आपां पहला कई बार कीता है, सबना वेखै संभालदा है, ठीक है जी। वेख्या तो भाव देखै तो भाव भी संभालना,
कि जिवें आपां एक उदाहरण की सांझ भी पाई सी ना कि माँ अपने बच्चे नूं किसी कोल छड्ड के जाए तो ये नहीं आखदी कि इनू कहंदा भाव कि बचा के रखियो, कहंदी कि ध्यान रखियो, इनू वेखियो माड़ा जिहा। वेखण दा भाव ये थोड़ा कि भावें कुछ मर्जी करी जाए तो असीं वेखीए कि हाँ मैं वेखदा रहा, ऐसा थोड़ा कि वो कोई गलत काम ना करे, कोई सट फेट ना मरा ले, इस करके उसका ध्यान रखा जाए, उन्होंने वेख्या जाए, हटाया जाए, ये भाव है। इस तरह पातशाह जी आखण लगे सबना वेखै नदर कर कि मेहर दी निगाह करके सब जीवां दी वो मालिक जिहड़ा आप ही संभाल करता है अते जै भावै तैं दे ते जो उस नूं पाउंदा है उस नूं अपने गुणां दी कदर जिहड़ी बख्शदा है, अपने गुणां दी दात फिर उहनूं बख्शदा है जिस नूं ओह पाउंदा है। थावा नाम न जानिए नावा के वडनाओ, ये जदों भी नाम शब्द आउंदा है ना, नाउ नाउ शब्द है जिहड़ा वो एक वचन हुंदा है, नन्ने नूं कन्ना ऊड़ी नूं उकड़, पर जदों नाव आ जाए जां नाम उदों बहुवचन के रूप विच कि इत्थे थावां तो भाव बहुतियां थावां की गल है कि थावां नाम, थावां दे नाम ते थावां किन्नियां ने बहुत ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादियां थावां दे नाम ना जानिए नावां केवट नाम, भाव केवट तो भाव किड्डा वड्डा। पातशाह जी आखण लगे कि बेअंत पुरियां धरतियां अदकन थावां नाम कि जिन्हां दे अनेक ही नां ने ते अनेक ही वो थावां हन, थावां नाम ना जानिए। ऐसियां भी जिहड़ियां ऐसी भी उन्हें थावां की रचना की है, इतनी बेअंत रचना है कि सब थावां दे पदार्थां दे नाम जाने नहीं जा सकते, कि पता नहीं लगता कि की है कि इहदा नाम की है, जां कुछ तक पहुँच ही नहीं हुई साडी कि उत्थों तक जिहड़ी थां तक जिहड़ा है पहुँच सकीए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड आदि विच है। इसे करके पातशाह नाम केवट नाओ कि पातशाह जी बेअंत नामां विचों वो किहड़ा नाम हो सकता है जो इतना वड्डा होवे कि परमात्मा दे असल वड्डपन नूं बयान कर सके। कि नावा केवट नाओ की केड़ा वड्डा नाम है जिहड़ा वो मालिक दे नाम नूं गुणा नूं जिहड़ा है वो वड्डपन नूं बयान कर सके। जिथै वसै मेरा पातशाह सो केवट है थाओ, पातशाह जी आखन लगे ये भी नहीं दस्या जा सकता कि जिथे सृष्टि का पातशाह प्रभु वसदा है कि मालिक जिन्हें सृष्टि बनाई है वह वसदा किथे है। सो केवट है थां कि वो थां किहड़ा है किन्ना क वड्डा है वो थां जिथे वो वसदा है, ये भी जिहड़ा है दस्या नहीं जा सकता। अंबड़ कोई न सकई हों किसनो पुछन जाओ, किसे कोलों कहते ये भी जिहड़ी है पुछी नहीं जा सकती कि किसे को पुछिए तो वो की दसेगा, क्योंकि कोई भी जीव उस अवस्था ते पहुँच नहीं सकता जिथों वो परमात्मा की बुजुर्गी सही सही दस सके कि हुण ते परमात्मा किन्ना क वड्डा है, उहदे बारे दस्सण दे लई उहदे जिन्ना वड्डा होना ही पएगा। कि जिवें कह दिए कि कोई पहलवान हुंदा जिहड़ा जां जिहड़े वेट लिफ्टर हुंदे कि हुण किन्ने किन्ने किलो है क्वांटलां तक जिहड़ा वो भार चुक लैंदे, ते हुण आपां ते तां ही दस्सांगे ना जे भार किन्ना कि जे आपां चुक सकदे होईए। कहण तो भाव है पहलां उस पहलवान दे वेट लिफ्टर दे बराबर होवांगे तां ही दस्सांगे ना कि इन्ना भार चुक्किया जांदा, इहदे विच आ कुछ इन्ना ही ताकत लगदी है। भाव जिन्ना वेट वो चक रहा है पहला उहदे बराबर का होना पएगा। इसे तरह जे उस मालिक के बारे दसना कि किन्ना क वड्डा है तो पहला मालिक जिड्डा तो बनना पएगा। इसे करके पातशाह जी आख रहे हैं कि अंबड़ कोई ना सकी, उत्थों तक कोई पहुंचिया ही नहीं
कि मालक जिन्ना कोई वड्डा हो जाए किस नूं पुछण जाऊं, कहंदे फिर पुछिए किहदे तो, क्योंकि इहो जिहा कोई है ही नहीं जिहड़ा रब जिन्ना वड्डा हो सके, मालक परमेश्वर जिन्ना वड्डा हो सके। वरना वरना भावनी जे किसै वड्डा करे, वरना वरण तो भाव वरण ते अवरण, उच्चियां ते नीवियां जिहड़ियां वो जातां आदि ने। वरण तो भाव है कि जात जिहड़ी जो समाज दे विच एक वड्डा कलंक है। गुरु नानक साहब जी ने तो ऐसी कोई गल कीती नहीं है, पर अज भी बड़े सिख ने वो बड़े माण नाल कहंदे ने, सिंह कट के मगरले पासे अपना गोत ला देंगे। कई बार ना लैन की बजाय कला गोद दे नाल ही साहब ला के आखणगे कि आह साहब आ गया, फलाना साहब आ गया, ना का पता ही नहीं। कहण तो भाव है कि इन्नी वड्डी पूछ अते उस तो भी वड्डी है गुरु तो बेमुखता, कि गुरु तो कहता ही नहीं गा कि पूछां लाओ मगर इन्हां दे तो कोई है ही नहीं। गुरु नानक साहब नूं भी पुछदे हो, कहंदे ना सब तो वड्डी मनुखता है, फिर पता नहीं पूछां क्यों लाउंदे। असल दे विच छज ने ये उदों अड़ जाते हैं जदों रब दे घर दे विच वड़ना होए, फिर ये पिछों अड़ जाते हैं। कहंदे ये की होया, कहंदे तुहाडे पूछ लगी हुई वो अड़ गई। ये अजिहियां पूछां ही इस करके कि जिन्ना चिर नहीं सोची है उन्ना चिर असीं करदे चंगी लगदी। की हो जाएगा अपनी जात दस्सण दे नाल कोई बंदा वड्डा हो जाएगा जां उहदी उमर वध जाएगी? ऐसा तो कुछ नहीं होना ना। पछाण ते कर्मां दी होनी है। कर्म चंगे करेंगे चंगा सलाया जाएगा, माड़े करेंगे माड़ा हो जाएगा। फिर वो मगरले पासे लाई हुई पूछदा की फायदा? किन्ना कुछ विलखण उहदे नाल दिस जाएगा कि उहदे नाल तेरे ब्लड दा रंग बदल जाएगा, जां तेरा अपना रंग बदल जाएगा, जां तू 2-4 फुट वध लंबा हो जाएगा, जां वो अपनी जात दस्सण दे नाल रब ते तू ज़्यादा नेड़े हो जाएगा। जे दसेगा तो दूर ते भला हो जाएगा, नेड़े नहीं हो सकता। इंज कह दिए कि ये गुरु दे शब्द गुरु दे हुक्म तो बेमुखता वाली गल है कि जिहड़े ये कार्ज करते हैं कि खैर पातशाह जी रहमत करन, समा अपने कोल थोड़ा है कि वरना वरना भावनी। पातशाह जी आखन लगे कि भावनी जे किसै वड्डा करे कि यह भी नहीं कहा जा सकता कि परमात्मा नूं फलानी उच्ची जां नीवीं जात पाउंदी है। कि क्या नहीं वरना वरना भावनी कि उन्होंने किहड़ी पाउंदी किहड़ी नहीं पाउंदी, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता जां नहीं पाउंदी। इस तरह वो किसी एक जात नूं उच्चा कर दिंदा है, ये कहा नहीं जा सकता। ओदी तां इक्को ही है जात, ओदे हुक्म विच चलण वाली, जिहड़ा ओदे हुक्म विच है ओदी जात वड्डी है, होर नहीं कोई। इस करके पातशाह किसी वर्ण नूं नहीं किसी जात नूं नहीं जाणदा। वड्डे हथ वड्डियाइयां जै पावै तैंदे, सारियां वड्डियाइयां वड्डे प्रभु दे अपने हथ विच हन। सिर जिहड़ा जीव उस नूं चंगा लगदा है, जिहड़ा उहनूं भावै तो भाव पाउंदा है, तैंदे उस नूं वो वड्याई बख्श दिंदा है। हुक्म सवारे अपने चसा न ढिल करे, अपनी रजा विच ही वो जीवन दे जीवन नूं सवार दिंदा है। हुक्म सवारै अपने अपने हुक्म दे नाल ही वो जीव दे जीवन नूं सवार दिंदा है। फिर चसा ना ढिल करे, चसा तो भाव बहुत थोड़ा समा कि रता भर भी फिर वो ढिल नहीं करता जीवन सवारन लगा। सबको आखै बहुत बहुत लैण कै विचार, पातशाह जी आखे परमात्मा तो दातां लैण दे ख्याल नाल हरेक जीव बहुती मंग मंगदा है, बहुत अते ये दस्या नहीं जा सकता कि परमात्मा कितना वड्डा दाता है। लैना कै विचार की विचार नहीं दसी जा सकती कि कितना क वड्डा वो दाता है।
केवड दाता आखिए दे कै रहया शुमार। शुमार का भाव हुंदा है हिसाब किताब, लेखा जोखा, गिणती मिणती कि वो दातां दे रहा है पर दातां दी गिणती, दातां उहदियां दातां ने वो गिणती तो परां ने, गिणियां नहीं जा सकदियां किहड़ियां वो दातां जिहड़ा है दे रहा है। केवट दाता आखी कि वो कितना क वड्डा दाता है। नानक टूट न आवोई तेरे जुगहां जुगहां भंडार। कि हे नानक आख हे प्रभु तेरे खजाने सदा ही भरे रहिंदे ने, जुगां जुगां तो जिहड़े ये खजाने सदा भरे ही ने, इन्हां विच कदे भी तोट नहीं आउंदी। तोट कदे भाव की घाट कदे नहीं आउंदी है, ना ही पै सकदी है, क्योंकि वो दाता ही इतना वड्डा है। इस पहली अष्टपदी दे विच हुण सतगुरु जी ने 7 पदे बख्शे, पर इसका सरलेख अष्टपदियां दे विच है। सो आपां अगलियां विचारां अगले दीवानां विच करांगे। होईयां भुल्लां दी खिमा गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है। सो कल दे विशेष दीवान आप सबना आप सब संगतां जाणो हो। फतेह प्रवान गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली।